everyone. So, with the wishes of clarity, wisdom, empowerment, and prosperity, I, Ronak Gupta, creator and crafter of Gyanurudra, welcome you all to this live Mentor Connect program to get further guided for making a rewarding career in petroleum engineering as part of our virtual bootcamp. And for this session, we have with us Mr. Mani Vansal as the expert mentor who will be guiding you all to make a great and rewarding career in the field of petroleum engineering. Mr. Mani Vansal is an experienced reservoir engineer with a demonstrated history of working in oil and energy industry. He is well skilled in reservoir simulation, pressure transient analysis, communication, management, and public speaking. He is the alumnus of Indian Institute of Technology, Dhanbad, previously and popularly known as ISM Dhanbad. I am extremely delighted to have you as our expert mentor for this session. And now, without any further delay, I would like to welcome you to proceed and have interaction with the participants to guide them further. So, once again, I welcome you, Mani. Thank you so much, Ronak, for this prestigious opportunity. Before I kind of start, I would like to understand my audience first. So, can all of you, whosoever is there, I don't know, there are like 9 people in the meeting. So, can I get an idea where these students are from and where they are in right now, which year and all? In the meanwhile, when they speak to me, I'll be opening the presentation, so I'll also get an idea of the audience and I can open the presentation. So anybody of you can start, so I can probably start with Vipin or Soumya Deep and others. I see a couple of names here. Hello, sir. Good evening, sir. My name Yes. is Adarsh Shekhar from Bokaro Shiv City, Jharkhand. Mm-hmm. I'm currently pursuing BTech third year, BTech Petroleum third year from Quantum University. Uh-huh. Hello, sir. I'm Asif Abdullah. I'm from Bihar, West Champaran, and I'm pursuing in BTech Petroleum third year. Adarsh Asif from which university? Quantum University, Roorkee. Okay, Quantum. Yeah. Hello, good evening, sir. Sir, my name is Jurunga Verma. I am BTech Petroleum Quantum University, third year. I am pursuing in BTech Petroleum Quantum University. I am from Lucknow. Okay, great. So others would like to introduce. I see Siddharth Singh is there, and are all of them from Quantum University? Like, Yes, they all are from Quantum University. Majority of them are from petroleum engineering. Somadeep is from mechatronics, and likewise. okay, okay. Yeah, good evening, sir. Good evening. So I am Siddharth Singh. My department is civil engineering, and I am pursuing from Quantum University. I am a third year student. Okay. Yes. Good evening, sir. I am Ayush Raj from Quantum University, pursuing BTech Petroleum, third year, sir. Okay, great. Okay, I think I do get a gist of who the audience is, and I'm glad आप लोग सब साथ हैं today, और मैं पूरा I'll कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना भी information I give. So can everybody see my screen? Like, Yes, sir. Yes, sir. just a minute. I something. Yeah, I think it's visible. Great. So this is a presentation जो मैंने SPE International is a forum which I am a part of, and personally आज that whatever हम बात करने वाले हैं is specifically on what my journey was with oil and gas, and
आर इंडस्ट्री, इट्स चैलेंजेस एंड फ्यूचर में कहाँ जा रही है इंडस्ट्री। तो बहुत सारे बच्चे कम टू मी एंड से कि सर वी आर रियली कंफ्यूज कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन लिया है, इज इट द राइट discipline or not. And then I'll also walk you through what is SPE and how can students be a part of SPE. Then I'll also walk you through a career advice. And when I say career, तो यहाँ पे career का spelling capital CAR इसलिए लिखा गया है because it's a very renowned company called Shell. And Shell में सबसे 3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, that is one is C stands for capacity, A stands for आपका adaptability और achievement level कितना है, and R stands for how your relationship building is with the different people जिनसे आप मिल रहे हैं, in fact amongst yourselves as well. So and then anything and everything that you would like to know about from me, and that's all what I'll be talking today. And Coming to SPE, so SPE is an international platform. SPE stands for Society of Petroleum Engineers, and currently I am the membership chairperson for SPE India section. And students के लिए सबसे best part ये है that SPE gives you free membership. So the membership for students is being sponsored by a company called Chevron. And what you have to just do is go to spe.org. I'll probably give the details towards the end of presentation. But spe.org पे जाइए. You probably have to upload your ID card as far as I know, and just say that you are in which year and you are pursuing petroleum engineering. Immediately once you do that, you will be getting a free membership as soon as the system checks कि you are studying into petroleum engineering in any university. So globally it is valid, it is not just in India. आप कहीं पे भी जाएंगे, any university you are into, and आप अगर petroleum engineering पढ़ रहे हैं, then you can be a part of SPE. Now I'll tell you the benefits of SPE in the future slide, but just to give you an idea how you can be a part of SPE. Now also giving you an idea of why I did what I did. So a lot of people are really confused. लोग जनरली बताते नहीं हैं कि हम आज आज मैं जहाँ पे भी हूँ, लेट्स से अगर मैं मेंबरशिप चेयरपर्सन हूँ या मैं ONGC में एक रेजर्वोयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, so what is the core idea behind it and how did my journey was shaped. So just like you guys, I started my journey in 2013 from IIT ISM Dhanbad. Back it was known as Indian School of Mines. Now 2013 में IIT JEE का पेपर दिया एंड आई हैड नो क्लू कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या होता है. और फर्स्ट ईयर में जाके सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दी फिजिक्स एंड एवरीथिंग, केमिस्ट्री. बट उस दौरान तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आए क्यों है. एंड आई थिंक द रीजन आई जॉइन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज बिकॉज मेरा जो जो रैंक आया था उस समय IIT JEE का, दैट वाज द ओनली रैंक आई कुड गेट, एंड उसके थ्रू जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा था वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लग रहा था. एट द सेम टाइम 2013 में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत अच्छे चल रहे थे. इफ आई गो बैक टू दी ट्रैजेक्टरी ऑफ 2009 से 2013 तक का मैं ट्रैजेक्टरी बात करूं, तो देयर वाज अ ग्रेट बूम इन दी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. एंड फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स यू सी कि धीरे धीरे वो प्राइसेस कम होने लग गए. अभी रिसेंटली आप देखोगे कि ड्यू टू सम रशिया यूक्रेन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, the prices again cross the $100 per barrel benchmark. But till date 2013 से 2020 तक का जो जर्नी है, that was a very bad period for the petroleum engineers because jobs नहीं मिल रहा था and the oil prices were really down. So service companies नहीं आ रहे थे, all of that. But the idea is कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या पैशन है, नहीं है. बट आई जस्ट वेंट विद दी फ्लो कि चलो करते हैं. Now, immediately when I joined my college in university in 2013, तो आपके भी कॉलेज में you will see there is a music society, कोई dramatics क्लब में है, कोई डांसिंग क्लब में है. तो मुझे हमेशा से एक चीज़ लगती थी, शायद आज मैं जितना भी इंग्लिश थोड़ा बहुत भी बोल पाता हूँ, the whole credit that I will want to give is to Toastmasters International. Toastmasters International is a public speaking platform. तो मेरे कॉलेज में फॉर्चुनेटली कोई सीनियर थे जिन्होंने टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल का क्लब वहाँ पे एस्टेब्लिश किया. आप भी अगर चाहते हैं तो यू कैन वेरी वेल मे बी सर्च ऑन गूगल की विच इज योर नियरेस्ट टोस्टमास्टर्स क्लब. आई थिंक बोकारो और रांची, ईदर ऑफ दोस टू प्लेसेस यू विल फाइंड देयर इज अ क्लब, एंड आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं. बिट्स मिश्रा में भी है, मुझे जितना याद है, एक क्लब है. तो द पॉइंट इज द होल आइडिया, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग मैंने बोल्ड किया हुआ है इसीलिए
बिकॉज मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि सोसाइटी की डिमांड है कि अंग्रेजी आनी ज़रूरी है, एंड आई वेरी वेल सपोर्ट दैट फैक्ट, बिकॉज कहीं न कहीं आप किसी को इंग्लिश में बोलते हुए सुन रहे हैं, तो इवेंचुअली यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ यार, ये तो अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, और प्रोबेबली कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा उसका स्पीक करता है, जितना आप अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। सो दैट वाज़ वन स्किल व्हिच आई वांटेड टू डेवलप। तो फिर बाद में हम सोचे कि चलो टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल का पार्ट बनते हैं। दी प्राइस फॉर बीइंग टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल का मेंबर बनने के लिए 3000 रुपीज़ आई गेस। बट अगर आज के दिन में आप पैसों को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है, 3000 रुपए कैसे लाएँगे? बट द पॉइंट इज़ कि ये जो स्किल है ये आपकी लाइफ टाइम में, इनफैक्ट आई विल टेल यू हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू आउट माय फ्यूचर इंटरव्यूज़ इन माय करियर। तो एनीबॉडी हू इज़ फंबलिंग, सबको मतलब बहुत सारे लोगों को आज भी मेरी कंपनी में डर रहता है कि यार इंग्लिश तो आती नहीं है, प्रेज़ेंटेशन कैसे देंगे? और ये बहुत ही छोटी-सी स्किल है, जिसको आप डेली बेसिस पे इफ यू प्रैक्टिस, सो आई बिलीव यू कैन वेरी वेल एक्सेल इन द सेम। लोगों को सुनो, पढ़ो। आई थिंक द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द विनर्स ऑफ टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, तो मैंने उनसे एक दिन जाके पूछा कि सर मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो कैन यू टेल मी हाउ आई कैन डू दैट? So the only word that the person gave me was to read. उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, whatever you read, it could be novels, it could be magazines, it could be newspapers, जो भी आपके हाथ में आ रहा है, धीरे धीरे it will inculcate. आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा भूल गए, दूसरे टाइम पढ़ा फिर भूल गए, it will happen, but the more you read, the more you listen, but at the same time आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और वो जो प्रैक्टिस वाला प्लेटफॉर्म है दैट इज टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल। तो वहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं उड़ाने वाला कि आप अगर स्टम्बल कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ पे एवरीबडी इज देयर to actually help you out to speak. So that is one thing I feel everybody of you should actually look forward to. Then the next thing, very next thing which I did in my career was, तो मेरे कॉलेज में इंटरनेशनल हम कभी गए नहीं थे इंडिया से बाहर। व्हेनेवर मतलब वो बहुत चाह होती है कि बाहर जाके आते हैं, घूम के आते हैं, लोगों को सुना था कि बस जाते हैं। तो उस दौरान देयर वर पीपल हु वर कमिंग टू मी, और वो पैम्पलेट्स बांट रहे थे कि एनीबडी हु वांट्स फॉर अ इंटरनेशनल इंटर्नशिप भेजेंगे, ऐसा है। तो मैंने कहा कि चलो एक बार देखते हैं कि है क्या है। सो आई वेंट टू, दिस इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड आइजैक। आइजैक इज अगेन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट्स एन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम। तो कुछ बच्चे डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया आते हैं, और इंडिया से कुछ बच्चे वेरियस कंट्रीज में जाते हैं। फॉर्चुनेटली आई वाज मैच्ड विद वन ऑफ द कैंपस इन मलेशिया, एंड द यूनिवर्सिटी विच आई वाज मैच्ड विद, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। तो मुझे जो पैसे देने पड़े थे वो 10,000 रुपए देने पड़े थे, विच वाज द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विच आई बिलीव, और द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, सो आई स्पेंड 42 डेज मलेशिया में, और मेरा काम वाज टू डू सोशल इंटर्नशिप ओनली। नाउ व्हाई इट हैज हेल्प्ड मी इन माय करियर इज बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक वॉलंटियरिंग वाला या समाज सेवा वाला एक आपके प्रोफाइल में एक टच लेके आ जाता है, जो बहुत सी कंपनियां आज के दिन में देखना चाहती हैं। सो इवन इफ यू डू ब्लड डोनेशन कैंप्स, या आप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से मिल रहे हैं, या फिर आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, anything and everything that you can bring on your resume, a touch of internship or a touch of social volunteering internship should be there. So that is how Isaac has helped me to build my resume in that direction. Next was, now I pivoted to second year. Malaysia का जो 42 days का internship था, that was at towards the end of my first year. And मैं सबको यही मोटिवेट करूंगा कि whenever you get an international exposure, भले वो इंडिया में रह के ही किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के कॉन्फ्रेंस का पार्ट होने का मौका मिले, या फिर बाहर जाके करने का मौका मिले, वॉट एवर यू गेट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट इट। देन द नेक्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज फंडामेंटल्स ऑफ रेजर्वोयर इंजीनियरिंग। सेकेंड ईयर में आए, धीरे धीरे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चला, अच्छा ड्रिलिंग ऐसे होता है, प्रोडक्शन ये होता है, रिजर्वोयर इंजीनियरिंग ऐसे होता है। एंड टू माई सरप्राइज द बेस्ट बुक जो मुझे आज तक जीवन में लगी है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ रेजर्वोयर इंजीनियरिंग बाय एल.पी. डेक। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि इस किताब को आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो 10 बार ही आपको नई चीजें आपको मिलने को लगेंगी। एंड इस चीज को धीमे 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 पढ़ोगे तो बहुत कोर एक बेसिक लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे वो बात करते हैं। इट मे नॉट डायरेक्टली टेक यू टू एकदम लेवल 10, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0 एंड देन इवेंचुअली विद द एडवेंट ऑफ टाइम इट विल गो टू लेवल 10। तो दी वन इम्पॉर्टेंट हैबिट जो शायद आप लोगों को इंकलकेट करनी पड़ेगी, इस जो प्रोफेसर्स किताबें बता रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं मैंने टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय जर्नी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये चीज रियलाइज की कि किताबें पढ़ना आपके लेवल पे, आपको किताबें पढ़नी जरूरी है। प्रोफेसर्स जो बता रहे हैं वो उनकी नैरोड इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन को कोलेट करके खुद की लिटरेचर पढ़ के तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि किसी ने आपको सिखाया कुछ, आपने पढ़ लिया, वो लिख के आ गए, एंड देन टुवर्ड्स द एंड यू हैव लिटरली नो क्लू
कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाई यू आर इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप मल्टीपल लिटरेचर बुक्स को फॉलो करें, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बुक व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वाज़ मेरे मेरे कॉलेज से हमेशा ऐसा रहता था कि लॉगिंग सर्विसेज़ या फील्ड ट्रेनिंग या ओएनजीसी के किसी भी ऑफ़िस में, इट कुड बी बोकारो, इट कुड बी अंकलेश्वर, मेहसाणा, बॉम्बे, दिल्ली, देहरादून, अलग-अलग जगहों पे इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता था। व्हेन आई से इंटर्नशिप, इट वाज़ मोर लाइक अ फील्ड ट्रेनिंग, जहाँ पे हमें ड्रिलिंग रिग्स क्या होती हैं, प्रोडक्शन पाइपलाइन्स कैसे हैं, यूनिट्स कैसे होते हैं, परफोरेशन कैसे होता है। तो लॉगिंग सर्विसेज़ में स्पेसिफिकली जो मैंने सीखा था वाज़ कि अगर मैंने वेल ड्रिल कर लिया है और मुझे अगर तेल निकालना है, तो परफोरेशन जॉब कैसे होगा, प्रॉपर आरडीएक्स को मिक्स कैसे करेंगे, कैसे उसको स्पार्क करेंगे, कैसे परफोरेशन गन से परफोरेट होगा, कैसे लॉग्स लिया जाता है, लॉग्स को प्रोसेस करके कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सो दैट वाज़ ऑल डन बाय मी इन लॉगिंग सर्विसेज़ दैट इज़ इन मेहसाना, एंड दैट लास्टेड फॉर लाइक 30 डेज़। तो मैं अगेन अगेन आई विल आस्क स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे फाइंड एन अपॉर्च्युनिटी कि ओएनजीसी की फील्ड ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग कीजिए। There is a very easy process to do an internship or training at ONGC. What you have to do is there is a ONGC training form. अगर किसी को नहीं मिल रहा है, they can reach out to me. I can give that form to them. उसको फिल करना है, उसको फिल करके the next thing that you have to do is आपके कॉलेज के जो भी प्रोफेसर हैं, उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, और आपका लास्ट सेमेस्टर का जीपीए कार्ड। ये 3 चीज़ों को आपको सबमिट कर देना है। यू कैन इवन सेंड इट ऑन ईमेल। तो ईमेल पे जब आप भेज दोगे, एचआर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो भी उनको लगेगा, एंड वन शुड ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई इन ऑल दी ओएनजीसी ऑफिसेज, रैदर देन कि आप बोकारो में सिचुएटेड हैं तो बोकारो के ही ऑफिस में कर रहे हैं, वैसा मत करिए। अगर आपको लग रहा है कैलकाटा के ऑफिस में भी कुछ मिल सकता है, और मे बी इफ यू फील कि समवेयर नियर बाय जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो रेदर देन ऑल ऑफ यू डिवेलिंग ऑन द फैक्ट कि सब बोकारो में जाके ट्रेनिंग करेंगे, वैसा मत करिए। यू शुड ट्राई एवरीवेयर वेरेवर इट्स पॉसिबल। इवन आईआरएस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमको वहाँ भी करना है, तो प्लीज मेक श्योर यू सेंड मी दी ट्रेनिंग फॉर्म्स विच आई कैन शेयर दी फॉर्मेट विद यू। एंड बट ये एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये दो दफा ही होती हैं, दैट इज ड्यूरिंग मे टू जून एंड ड्यूरिंग दिसंबर टू जनवरी। नाउ व्हेन इट इज हैपनिंग फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, इट मीन्स आपको प्रिपेयर होना है अक्टूबर से ही। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में आ गए और मिड मिड दिसंबर आप मुझे कह रहे हो कि सर मुझे ट्रेनिंग लगवा दीजिए या मुझे इंटर्नशिप लगा दीजिए। तो ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कब एक्चुअली अप्लाई करना है। द नेक्स्ट थिंग विच आई फॉर्चुनेटली गॉट ड्यूरिंग माई करियर वॉज, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार मेरे प्रोफाइल में तो ऐसा कुछ धांसू है ही नहीं, मतलब मैं तो शेल जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप तो कभी भी नहीं कर सकता हूँ। बट टू माई सरप्राइज, दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे इंटर्नशिप में काम आई हैं was my international exposure with ISEC, and the second was my exposure with Toastmasters International. अब दोनों में एक इंटरनेशनल टच है, और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि शेल एज अ कंपनी थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा है, बिकॉज शेल इज़ अ क्रॉस कल्चरल कंपनी। मेरे साथ जर्मन भी थे, मेरे साथ जापानीज लोग भी थे, मेरे साथ यूएस के इंटर्न्स भी थे, सो एवरीवन वाज विद मी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूरी होता है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल सेट्स ऑफ पीपल। तो इफ somebody wants to apply for Shell internship, without any hesitation आप अप्लाई कीजिए। बट कहीं ना कहीं देयर वर सर्टेन कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो, जो मैंने कॉलेज में शेल डे होता था हमारे कॉलेज के दौरान, केस स्टडी कॉम्पिटिशन होता था, या ऑनलाइन शेल के आइडिएशन कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसमें आपको एक आइडिया रखना है जिसमें आप जीत सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं। तो आई यूज टू अप्लाई, एंड फॉर्चुनेटली 1-2 में मैं जीत भी गया था। तो वो भी कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट किया था टू गेट एन इंटर्नशिप एट शेल। तो व्हाट आई डिड एट शेल वाज़ आई डिड माय रिजर्वॉयर सिमुलेशन। सबसे पहली दफ़ा मुझे पता चला कि रिजर्वॉयर सिमुलेशन करते कैसे हैं, एक सॉफ्टवेयर कैसे होता है, हाउ डू यू एक्वायर डेटा, हाउ डू यू पुट पीवीटी डेटा इनटू इट, हाउ यू डू पुट रॉक फिजिक्स इनटू इट, आप सिमुलेशन कैसे कर रहे हैं, डायनामिक सिमुलेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स को चलाना कैसे है। सो ऑल दैट वाज़ बीइंग टॉट टू मी बाय शेल, and I think my internship lasted for 2.5 months। और मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था was a project in Kazakhstan, तो it has nothing, so Shell का कोई ऐसा इंडिया में ऑपरेशन as such नहीं है, it's more like an R&D hub। एंड आज के दिन में भी अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर आप 3rd ईयर में हैं और मे बी पिवटिंग टुवर्ड्स द फाइनल ईयर, तो वो शेल इंडिया बैंगलोर के अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में भी ओपन है। Just go to Google and search Shell Bangalore 2022 India opportunities.
उस फॉर्म को बहुत ही बारीकी से भरिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड यू मे नेवर नो दैट एनी वन ऑफ यू मे एंड अप बीइंग अ पार्ट ऑफ शेल। इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग, तो हमेशा अप्लाई करना ज़रूरी है और उसका कैंपस से कोई लेना-देना नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू द वेबसाइट। I will share the website name with you and you can be a part of Shell Bangalore as well. So that is how I ended up being a part of Shell. Then I think after Shell Bangalore मेरे कॉलेज में सबसे पहले जो ज़ीरो डे पे कंपनी आई थी was ONGC. Like I said 2013 से 2017 was when I graduated. तो 16-17 तक तो ऑयल प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। कंपनीज लाइक स्लम्बरजे, केन वेदांता, रिलायंस, हैलिबर्टन, बेकर ह्यूज, कोई भी कंपनी नहीं आ रही थी। इनफैक्ट शेल बैंगलोर ने जो मुझे इंटर्नशिप दिया था, उन्होंने पीपीओ भी वैकेंसी के कारण नहीं दिया था बिकॉज़ वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं थी। So the only company that ended up coming to my college was ONGC, एंड फॉर्चुनेटली मुझे गेट का पेपर नहीं देना पड़ा था। बट आज के दिन में जैसे बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गेट का पेपर देना पड़ेगा, उसके थ्रू ही यू कैन कम टू ONGC। आई वाज़ फॉर्चुनेट इनफ टू गेट थ्रू अ कैंपस जॉब ऑफर, बट इट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। Then at the same time, I think during my college career I was very much associated with two separate bodies, which was VP, which is पहले पेट्रोटेक कहलाया जाता था, इसको now it's Federation of Indian Petroleum Institute, and SPE International. So these are two petroleum engineering societies which I was a part of. मेरे कॉलेज में दोनों societies के क्लब्स बने हुए थे and I was associated with both these societies. Obviously एक ऑफिसर लेवल पोजीशन पे नहीं, बट एज अ मेंबर। सो कभी भी कोई इवेंट होता था, जैसे शायद आज एक इवेंट मैं जैसे दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग आते थे, तो आई यूज टू इंटरेक्ट विद देम, आई यूज टू नेटवर्क विद देम एंड अंडरस्टैंड कि चलो इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। सो दैट इज हाउ आई एसोसिएटेड माई सेल्फ विद एसपी इंटरनेशनल एंड पीपी। द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज, सो इमीडिएटली आफ्टर माई जॉब ऑफर, तो मैंने सोचा कि जॉब ऑफर तो मिल गया है, तो अभी दारू पीने का टाइम है या मस्ती करने का टाइम है या एक्चुअली पढ़ने का टाइम है। बिकॉज आई हैड अ वेरी क्रूशल टाइम कि जॉब ऑफर हो गया है, तो दिमाग के ऊपर से टेंशन चली जाती है कि चलो अभी घर वालों को बोलने के लिए तो कुछ है कि जॉब ऑफर है हमारे पास। तो दैट नेक्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज कि मैंने सोचा फ्यूचर में अगर कभी भी मुझे मास्टर्स करना है, और मैं आई एम मोर ऑफ अ चैंपियन ऑफ डूइंग मास्टर्स फ्रॉम एन ओवरसीज इंस्टीट्यूट। लाइक आई सेड, इंटरनेशनल टच आप जितना आपके प्रोफाइल में लेके आ पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। So I applied for my GRE. I got a score of 320 of 340, or I was okay with it. I was happy with it, whatever preparation I did. तो द बेस्ट पार्ट अबाउट द GRE एग्जाम दैट आई गिव वाज कि इसका स्कोर 5 साल तक वैलिड रहता है। तो मुझे ऐसा था कि अगर मेरे जर्नी में मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, तो द ओनली थिंग दैट आई माइट हैव टू डू इज टू जस्ट अप्लाई फॉर अ ओवरसीज इंस्टीट्यूट, मे बी कैलगरी, मे बी UT ऑस्टिन, टेक्सास A&M, स्टैनफोर्ड एंड सो मेनी अदर्स अलाइक। तो माई द बिगेस्ट बेंचमार्क, जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेयर यू आर वर्किंग, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई इरेडिकेट दिस हर्डल ऑफ माय लाइफ एंड डू इट राइट व्हेन आई एम इन माय फाइनल ईयर। तो मैंने GRE का पेपर दे दिया एंड गॉट माय स्कोर विद मी, एंड आई थिंक इट्स वैलिड टिल डेट एज वेल। सो आई हैव वन मोर ईयर टू गो, and towards the end also I was participating in certain competitions that were part globally. So globally मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल चीज़ों से पार्टिसिपेट करो, तो इंडिया में रह के भी आई कुड पार्टिसिपेट इन मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स दैट वर एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो EAG करके एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। तो उनका एक फील्ड चैलेंज करके एक प्रोग्राम होता है विच इज़ टुडे नोन एज डॉरी लेक चैलेंज। तो डॉरी लेक चैलेंज इज नथिंग, इट्स अ फील्ड चैलेंज जहाँ पे आपको एक ब्लॉक पे बिड करना है, रिजर्वर सिमुलेशन करना है। तो ऑल दैट आई हैव लर्न थ्रू शेल बैंगलोर was very much applied in my field challenge competition which I applied. तो ग्लोबली 6 टीमें, ग्लोबली व्हेन आई से वर्ल्ड से सिर्फ 6 टीमें सिलेक्ट होती हैं, एंड आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट कि मेरी टीम में जो लोग थे और मैं, वी गॉट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट पेरिस इन 2017। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हर चीज़ स्पॉन्सर्ड थी, हमको 1 रुपया भी नहीं लगाना था। राइट फ्रॉम वीज़ा, राइट फ्रॉम फ्लाइट टिकट्स, राइट फ्रॉम आवर स्टे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज बीइंग पेड बाय EAG। आज के दिन में भी ये कंपटीशन वेरी मच वैलिड है। यू गो ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड इट एज डॉरी लेक चैलेंज, so you can very much participate in the same as well. मूविंग नेक्स्ट, आई एंडेड अप जॉइनिंग ONGC में बहुत सारे सॉफ्टवेयर सच एज पेट्रोल, ये जो सबसे लेफ्ट साइड में सिंबल देख रहे हैं वो पेट्रोल का है। राइट साइड में CMG के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, IMAX, बिल्डर, सीमोस्ट, जेम, स्टार्स और इंटरसेक्ट एंड पाइप सिम। तो ONGC के बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, स्लम्बरजर से लोग आते हैं,
जो हमको इन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ट्रेनिंग्स आर कि आप इन चीज़ों को हफ्ते भर में सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर सीखने के लिए यू नीड वेरी हाई टाइम, बट इट्स मोर लाइक यूजिंग एमएस एक्सेल। अगर मैं आपको कह दूं कि अच्छा ऑटो सम कैसे यूज करना है, और कैन यू टेल मी हाउ डू यू डुप्लीकेट और रिमूव द डुप्लीकेटेड डेटा फ्रॉम एन एक्सेल शीट, तो जस्ट आपको क्लिक कहाँ करना है, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, वो उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू मिस आउट ऑन द फैक्ट इज कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन द बैकग्राउंड। तो अगर मैं ये चीज़ क्लिक कर रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, वो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सेल ऑन द सॉफ्टवेयर स्किल्स। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप एक गेम खेल रहे हो, क्लिक 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 किया, और फिर बस वो सीख नहीं रहे हो फिर। एंड that is something which one should be very much wary of the fact कि सॉफ्टवेयर स्किल्स जब आप सीख रहे हो तो इट शुड ऑल्सो बी फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, मोस्टली बैक एंड एंड फ्रंट एंड। आई थिंक आप एक बार सीख जाओगे, विद मोर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू लर्न कि फ्रंट एंड में कौन सा टूल, कौन सा रिबन, कौन से क्लिक पे क्या हो रहा है। Towards the end, like I said, I am still a part of SP India section as membership chairperson. I ended up being a part of Ahmedabad यहाँ पे ONGC में, and यहाँ पे I found out there is a beautiful section like SP India section. SP से मैं बचपन कॉलेज से ही associated था, तो मैंने सोचा why not I take this journey ahead and then maybe do something at a leadership position. तो मेरा सोल मोटो वॉज टू रिप्रेजेंट। मेरे रेज्यूमे में अगर कल को मुझे कोई पूछता है कि आपने लीडरशिप कहाँ से सीखी है, so I can probably tell कि I am leading as a membership chairperson, so and that too at a very big scale. So that was the idea of being a part of SP. नेक्स्ट आई थॉट कि बहुत सारा हाइप हो रहा था कि कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, एंड आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। 2020 की बात है, अप्रैल 2020, द वर्ल्ड वाज क्लोज्ड, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, और पीपल वर रियली कंफ्यूज्ड कि क्या करें क्या नहीं करें। So I thought why not I use this opportunity to do something which I have always lacked in my skill. तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ थी मुझे जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता था थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ, क्योंकि हमारे जो कोडिंग के जो टीचर थे उन्होंने शायद इतनी अच्छी तरह से हमें वो पढ़ाया नहीं था। तो आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड कि कोडिंग मेरे बस की तो है ही नहीं। और जब मैं लिंक्डइन मेरे प्रोफाइल पे स्क्रॉल कर रहा था, एंड आई फॉर्चुनेटली सॉ दिस पोस्ट बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग फ्री कोडिंग क्लासेस बिकॉज पैंडेमिक है, तो वो समाज सेवा करना चाहते हैं। तो आई वॉज लाइक वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। सो आई अप्लाइड फॉर दैट होल कोर्स एंड आई वॉज लिटरली एक्चुअली स्टडिंग विद दी स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स देयर। बट द फर्क इतना ही था कि मैं वर्चुअली ज्वाइन था, वो लोग भी वर्चुअली ज्वाइन थे, बट जो प्रोफेसर्स थे वो दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। हमने 2 महीना लिटरली उनके साथ पढ़े हैं, उनके साथ असाइनमेंट्स किया है, उनके साथ कोडिंग सीखी है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड विद मी अगेन। एंड आई थिंक आज के दिन में भी इट इज़ वेरी मच वैलिड। गूगल पे जाएंगे आप, कोडिंग प्लेस सर्च करेंगे, एवरी ईयर नाउ स्टैनफोर्ड हैज मेड दिस अ प्रैक्टिस कि चलो हर साल अभी ये कोडिंग प्लेस का कोर्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक आप लोग भी जा सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल से कि को हमें सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से करें सर, पता नहीं चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ब्यूटीफुल सोर्स जहाँ पे आपको जेन्युइन चीज़ें और राइट चीज़ें बताई जाएंगी, एंड एनीबडी कैन एनरोल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ पैसा नहीं भरना है, लाइक $1000 ले रहे हैं ये कोर्स का वो कोर्स का, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन द नेक्स्ट थिंग वाज आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि चलो मैं बोल तो रहा हूँ, कर भी रहे हैं, बट कुछ लिखना भी चाहते हैं। तो ब्लॉग ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं, कोई medium.com पे लिखता है, बट देन अगेन आपको फॉलोअर्स चाहिए, यू शुड हैव टू रीच टू द मासेस। तो आई थॉट व्हाई नॉट आई डू समथिंग वेयर आई राइट एंड देन इट ऑटोमेटिकली रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। तो देयर वाज वन एसपीई के थ्रू देयर वाज अ मैगजीन कॉल्ड द वे अहेड। तो मैंने सोचा कि लेट अस बी पार्ट ऑफ द मैगजीन एंड ट्राई करके देखते हैं, अप्लाई करके विल दे पिक मी। तो ओएनजीसी में आई वाज राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर वन ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो जब वे हायर्ड में मैंने अप्लाई किया था, तो उस दौरान उन्होंने पूछा कि आपका कोई ऐसा काम बताइए जो आपने पहले लिख रखा हो, एंड आई जस्ट सबमिटेड द सेम रिपोर्ट जो मैंने शायद ओएनजीसी में लिखी हुई थी, एंड दे लाइक्ड इट। तो एंड देन दे पिक्ड मी एज वन ऑफ द एडिटर फॉर द वे अहेड मैगजीन। इट्स एन इंटरनेशनल मैगजीन। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑफ विद एचआर डिस्कशन, देन आई पिवटेड टू नेक्स्ट इन एनर्जी। वाई नेक्स्ट इन एनर्जी? क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऑयल एंड गैस की तो बहुत सारी नॉलेज 4 5 10 साल तक ले रखी है, बट ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आज के दिन में रेन्यूएबल एनर्जी में क्या हो रहा है, सोलार में क्या हो रहा है, लिथियम पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कौन कौन सी तरह के होते हैं। सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट इट। तो मैंने सोचा नेक्स्ट इन एनर्जी डोमेन पिक करते हैं और फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड देन आई थिंक
उसके बाद with more time I thought कि why not I also be a part of some discussion group जहाँ पे इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं, जहाँ पे businesses की बातें हो रही हैं, next renewable energy में क्या investment हो रहा है. So I founded a beautiful group on LinkedIn again, which is Harvard Business Review. आप भी जा सकते हैं, but it's a closed group. Make sure that जब भी आप Harvard Business Review के ग्रुप पे अप्लाई करें, तो you genuinely tell your reason why you want to be a part of it. And I think if you are genuine, they will pick you to be a part of the group. So once you are a part of that group, then immediately you can probably pick these group things, and then you can very well understand and read about what is going on in the world, at least in the renewable energy, and also in the other companies. It could be finance, or it could be venture capital, it could be FMCG markets. So anything and everything जो आपको लग रहा है. And then so that's what I did through the Harvard Business Review. And अभी future में धीरे धीरे I'm adding more skills to my profile, and I wish that ये जो energy है मेरा, although I'm working in a company, वो I think learning should never stop. It's an inevitable चीज जो during the lifestyle चलती रहनी चाहिए, and that is what I also tell the students. मूविंग नेक्स्ट, जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ एनर्जी कंपनी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है. तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लू वाला सबसे कर्व आप देख रहे हैं विच हिस्टोग्राम नाउ, इट्स ऑन ऑयल डिमांड. तो इंडिया में वर्ल्ड के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ऑयल डिमांड इज 97 मिलियन बैरल्स पर डे. आज 2018 का डेटा है. इट इज टेकन फ्रॉम बीपीज एनर्जी आउटलुक. और 2050 में बीपी एनर्जी प्रेडिक्ट्स की 47 ही रह जाएगा. सो यू सी वर्ल्ड वाइड 0.49x ही रह जाएगा ऑयल का डिमांड. वेयर एज इंडिया की अगर बात करते हैं तो 5.1 अगर है, एंड इट विल गो टू 5.2. दैट इज द ओनली चेंज दैट दे सी फ्रॉम 2018 to 2050. वेयर एज इफ यू ऑन द राइट हैंड साइड ग्रीन वाला जो कर्व है दैट इज फॉर गैस. तो वर्ल्ड में यू सी अगेन देयर इज अ ड्रॉप ऑफ गैस, बट वेयर एज इन इंडिया you will see there's a massive demand for gas that is going to come in future. So now there is the stronger reason why इतना ज़्यादा gas का demand इसीलिए है because I think people are pivoting to cleaner energies and they believe कि natural gas is better than oil. Plus there is a lot of electricity demand, population rise हो रहा है, electricity की ज़रूरत है, we need plants to be working, तो कैसे होगा. So I think natural gas is gonna support us a lot. करंट इम्पोर्ट डिपेंडेंस अगर इंडिया लेवल पे हम बात करें तो 85% ऑफ द ऑयल वी टेक फ्रॉम आउटसाइड, 53% वी टेक फ्रॉम अगेन आउटसाइड. सो देयर इज अ वेरी लार्ज स्कोप फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो इंडिया के लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेट्रोलियम इंजीनियर्स की, बिकॉज वी नीड टू somehow fill this reduce this import dependency. In fact, Modi ji has already said that till 2030 हमें 10% इस जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं ऑयल को उसको रिड्यूस करना है. एंड हाउ विल वी डू इट? बाय ब्रिंगिंग more engineers who are learning the right skills. एंड there is inevitable chance for the petroleum engineers. तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लेके बहुत गलती कर दी है, तो दैट्स नॉट द थिंग. एंड अगेन द कंसर्न्स जो आजकल चल रहे हैं कि सर क्लाइमेट चेंज चल रहा है, हाउ विल वी मीट द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, हाउ विल ऑयल कंटिन्यू और नॉट, और ऑल्टरनेटिव एनर्जी में इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो तेल तो खत्म ही हो जाएगा. तो ऑल दीज आर आई थिंक कनार्ड्स एंड ऑल, मतलब बेकार की बातें हैं. बट यू somehow हैव टू फिल दिस 5.1 to 5.2. और आपको ये भी पता है कि फील्ड्स डिक्लाइन हो रही हैं. अब फील्ड्स डिक्लाइन हो रही हैं तो वो 5.1 आज के दिन में 5.1 नहीं रहा, वो 4.4 हो गया होगा. तो वो जो गैप है वो किसी को तो फिल करना ही है. एंड दैट इज वाई यू नीड मोर इंजीनियर्स टू टेक ऑयल, एंड देयर विल बी मोर एक्सप्लोरेशन गोइंग ऑन. बट यू शुड नॉट रियली वरी अबाउट कि क्या होने वाला है. Again, what's happening globally, like I said, there is zero emission, climate की बातें चल रही हैं, there's a lot of climate change going on, temperature, there's a political geopolitical shift हो रहा है, carbon dioxide reduction है, electricity को reduce करवाना है, and then there is also कि demand shift है from oil to gas. So all these things are happening, and I think the only solution people say is hydrogen. And I think hydrogen is definitely gonna play a very important role in future, क्योंकि हाइड्रोजन इज द सोर्स विच द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वाउचिंग ऑन. न्यूक्लियर एनर्जी पे वाउच कर नहीं सकते बिकॉज इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. प्लस सोलर एनर्जी बिकॉज अगेन अ प्रॉब्लम कॉस्ट. अगेन विंड एनर्जी भी शाम में आएगा, सुबह आएगा, दिन में कैसे स्टोर करेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज दैट इज गोइंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड. So the only next direction that the government is thinking is to
to accelerate the hydrogen thing, and I think that they are very much doing it and investing in that direction. Now the biggest career dilemma that people have is कि सबसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किस दिशा में जाना है। तो बहुत सारे लोग भटक जाते हैं कि अरे यार उसका वहाँ जॉब लग गया, अरे ये यहाँ जा रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि वेयर यू हैव टू गो। देन सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, व्हाई यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। इज इट कि आपके दोस्त वहाँ जा रहे हैं, और इज इट फैमिली वालों ने बोला है, और इज इट कि आपका खुद का मन है वहाँ जाने का। सो दैट हैज़ टू बी वेरी मच अंडरस्टूड। वो चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे तो लॉन्गर रन में इट विल हर्ट यू बैक। हाउ इज समथिंग विच अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ठीक है आपने बता दिया कि यहाँ जाना है, ये करना है, बट आप ये तो बता दो कि करना कहाँ से है और क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई थिंक आई विल टॉक अबाउट दी हाउ पार्ट ऑफ इट इन माई प्रेजेंटेशन, और बाद में देन यू रिपीट दिस होल साइकिल विच वाई हाउ यू कीप ऑन आस्किंग। एंड वन वेरी गुड मॉडल दैट आई यूज कि पता करने के लिए कि कहाँ जाना है, इज टू यूज अ मेंटल मॉडल नोन एज इनवर्स प्रिंसिपल। इनवर्स प्रिंसिपल कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोयला आज से 30 साल बाद भी रहने वाला है तो आप कोयले की स्किल में इन्वेस्ट कीजिए। इफ यू फील कोडिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स, तो ये मत पूछिए कि कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करें तो मज़ा आ जाएगा, ये पूछिए कि कौन सी चीज़ नहीं रहने वाली है, और फिर धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोडिंग इज दैट स्किल जो नहीं रहने वाली है, देन डोंट इन्वेस्ट। बट अगर आपको ये मन में लग रहा है कि नहीं नहीं कोडिंग इज समथिंग दैट विल स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 50 60 70 ईयर्स, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट नाउ। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। नाउ वेयर एम आई गोइंग, लाइक आई सेड, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि किस दिशा में जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिक करना। नाउ अगेन ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं कि ठीक है इमीडिएटली मुझे अगर एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाना है, दैट इज़ ओके, बट यू हैव टू हैव अ वेरी फार साइटेड विजन ऑफ योर लाइफ, कि दूर तक में आज से 10 साल बाद 15 साल बाद आप आपके अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। डू यू वांट टू सी योर सेल्फ एज एन ओएनजीसी इंजीनियर, डू यू वांट टू सी योर सेल्फ एज की शेल जैसी कंपनी में काम करते हुए देखना चाह रहे हैं, या फिर आप फोटोग्राफी में देखना चाह रहे हैं। बट यू हैव टू एवरीथिंग जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो 10 साल 20 साल के उसके विजन में रखिए। आपको आप डेफिनेटली आप ये भी बोल सकते हैं मुझे तो एक नासा, एक खुद का नया नासा बनाना है इन इंडिया, तो समथिंग लाइक दैट कैन वेरी मच बी पॉसिबल। तो डोंट गेट स्कैर्ड बाय द फैक्ट कि आपका गोल कितना बड़ा है। इट कुड बी वेरी बिग गोल और इट कुड बी अ वेरी स्मॉल गोल, बट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। ऐसा नहीं है कि जॉब कर लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे चलो क्या होगा, फिर वहाँ जॉब में चले गए फिर देखेंगे क्या होगा। So don't have a hop in hop out wala attitude. You should always have a long focus towards life. I think all of us have a bigger purpose to serve in the energy sector, or there are a lot of opportunities which we can really practice. So have a long term vision. Plus जब आप long term vision ले रहे हैं, but make sure that you do not break down in between. आधे रास्ते चल लिए फिर बाद में U-turn मार दिया. Don't ever do that. और do not apply shortcuts. A lot of people say कि चलो सीढ़ी चढ़ के दूसरे तरफ चले जाते हैं, so do not do that. Walk consistently and walk diligently. अगर आप ये दो चीज़ों को follow कर रहे हैं, which is consistency and hard work, nobody can stop you from excelling in your career. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. Towards the end, don't get scared if something is broken in the midst. You can very well figure out a solution. हर चीज़ का solution होता है. So don't get scared with how big your goal is और खड्डा कितना ज़्यादा deep है, गिर तो नहीं जाएंगे। Everything needs a try and only when you try you will be able to succeed. नहीं तो risk reward ratio अच्छा नहीं होगा, जितना risk उतना ज़्यादा reward है, simple. Now one more thing that people also ask me is कि okay समझ गए कि direction होना चाहिए, now how do we pick the direction? तो let's assume कि आपने इनमें से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज देख रहे हैं उसमें से टेक्नोलॉजी, और इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी हॉस्पिटैलिटी और इंजीनियरिंग और फिनेंस और लॉ, आपने कोई भी एक डोमेन पिक कर लिया। मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है दैट इज स्पेसिफिक टू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो लेट्स से आपने वो पिक कर लिया दैट इज टेक्नोलॉजी एंड दैट टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। नाउ यू फिगर आउट द वेरी नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ कंपनीज कौन सी हैं जिसमें आपको जाने का मन है। नाउ इट कुड बी शेल, इट कुड बी टोटल एनर्जीज, इट कुड बी ONGC, इट कुड बी शेवरॉन और मैराथन ऑयल और सऊदी अरामको, रिलायंस, पेट्रोनास। तो इन सब कंपनीज को आप छाट लीजिए। नाउ गो टू अ वेबसाइट नोन एज ग्लासडोर, जो है मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है विच इज ग्लासडोर। गो टू ग्लासडोर
एंड सी की कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं, हाउ इज द कंपनी डूइंग, इज द कंपनी डूइंग रियली गुड, इज इट फायरिंग इट्स एम्प्लॉइज, इज इट हायरिंग द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज का स्टेटस क्या पे है, रिव्यूज कैसे हैं। तो आई थिंक ग्लासडोर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं कि अच्छा ये कंपनी में ये फलाना आदमी ऐसा बोल रहा है, या इसको ऐसे फायर कर दिया गया था, या इस कंपनी में इतने पैसे मिल रहे हैं। So you get an idea about anything and everything on Glassdoor. It's not necessarily कि oil companies के बारे में आपको पता चलेगा, दूसरी companies के बारे में भी you can very much know. If you want to go into consultancy, you can know about McKinsey, you can know about Bain and Company, BCG, PwC, Wipro. So multiple companies you will get an idea. Now once you identify, उसके बाद there is a quality check you should be doing. Go to their company website, slv.com, shell.com, corporate.exxonmobil.com. तो ऐसी कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं विच आर ऑफिशियल। गो टू दी कंपनी वेबसाइट एंड सी की कंपनीज में जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे हैं, प्रोफाइल्स कैसे मांग रही है कंपनी, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। एंड वंस यू लेट्स से गो टू लैंड टू अ कंपनी वेबसाइट, आपने खोल लिया वेबसाइट, देन यू जस्ट क्लिक ऑन वन, लेट्स से आपको पसंद है डेटा साइंस फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा साइंस का वो जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन किया, तो जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है बॉटम पे, देयर इज वन जॉब डिस्क्रिप्शन जो ओपन हुआ रखा है विच इज ऑफ डेटा साइंस। तो मैंने ओपन किया, मैंने देखा अच्छा मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए। आई सी एक्सपीरियंस इन पावर बी आई फॉर बिल्डिंग डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड, आई सी acumen टू लर्निंग टूल्स लाइक पाइथन, आई सी एडवांस नॉलेज इन MS एक्सेल। तो मैंने ये अपने KPIs बना लिए जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे डिवेलप करनी रहेंगी। एंड वंस आई अंडरस्टैंड कि अच्छा कंपनी में इन सब चीज़ों की डिमांड है, then I go to further different sources like medium.com, The Guardian, New York Times, Economist, Atlantic. I think ये सारी वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ सकते हो। देयर आर फ्री एक्सटेंशंस जो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगे, विच यू कैन वेरी वेल गो एंड देन रीड अबाउट दीज आर्टिकल्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे वैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो आई थिंक आप जब इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा मार्केट में कौन सी ज़्यादा स्किल सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो आपको वो स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी थ्रू दिस प्रोसेस। नाउ लेट्स से आपको पता चल गया कि अच्छा सूरज इस दिशा में उग रहा है, दैट इज द ईस्ट। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है द जियोग्राफी। तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गुजरात में अगर आप काम कर रहे हैं तो यू विल फाइंड ऑल द गुजराती पीपल हियर, और अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो यू विल फाइंड हीट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कनेक्टिंग विद द पीपल, क्योंकि आप साउथ इंडियन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ना हिंदी आ रहा है ना गुजराती आ रहा है। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली की चीज़ें कहाँ मीट हो रही हैं। अगर आप बोकारो से बिलोंग कर रहे हैं तो आर यू ओके विद गोइंग टू मुंबई, आर यू ओके टू गोइंग टू दिल्ली, और आर यू ओके टू वर्किंग विद एनी अदर कंपनी विच इज़ नॉट क्लोज टू योर होम। तो कुछ कंपनीज के ऑफिसेस अलग अलग जगहों पे हैं, जैसे ONGC का ऑफिस कहीं कराईकल में है, काकीनाडा में है, और नॉर्थ ईस्ट में असम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और मल्टीपल प्लेसेस। नाउ द पॉइंट इज आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको उस जियोग्राफी में सच में काम करना है या नहीं। आपने देख लिया चलो कंपनी में काम करते हैं, जैसे शेल एक कंपनी है, तो शेल के जो ऑफिस है वो बैंगलोर या चेन्नई में ही है और कहीं नहीं है। तो फिर अगर आप शेल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द फैक्ट कि हाँ भाई मेरे को जीवन में फॉर द सम टाइम आई हैव टू वर्क इन चेन्नई एंड बैंगलोर। सेम इज विथ स्लम्बर्जर। स्लम्बर्जर में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है बॉम्बे में है और पुणे में है। तो पुणे और मुंबई में से जहाँ आपको लग रहा है आप ओके हैं वहाँ पे काम करने के लिए, देन ओनली यू शुड स्टार्ट विद दैट कंपनी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये कंपनी हम पिक तो कर ले रहे हैं, बट क्या जेन्युइनली उस जियोग्राफी में जाना है या नहीं जाना है। सेकंड इज़ एम्प्लॉयर ब्रांड, जो मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ अपने जीवन में। एम्प्लॉयर ब्रांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लाइफ में कहीं पे भी पिवट करना है। आप आज के दिन में तो पेट्रोलियम इंजीनियर हैं या रिजर्वोयर सिमुलेशन इंजीनियर हैं या प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, बट लॉन्गर रन में आपको MBA करना है, आपको कैट का पेपर देना है, आपको UPSC करना है। और फॉर सम रीज़न UPSC के लिए उतना मैटर नहीं करता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ब्रांड वैल्यू होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिडास के जूते हैं और बाटा के जूते हैं, कहीं न कहीं आप बिना जूते पहने ही बोल दोगे कि नहीं पहले एडिडास वाला ही लूँगा मैं। So that's how the society works. I'm not saying कि you should be biased on both the brands, but that's how the society works, और हमें भी उस तरह से ही वर्क करना पड़ेगा if we have to sell ourselves and our skills. देन इज दी कल्चर। अगर कल्चर ऐसा है कि भाई आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ आप अकेले ही राजा हैं वहाँ के, तो वहाँ पे सीखने को तो कुछ मिलने नहीं वाला। यू हैव टू ऑल्सो फाइंड पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग अलॉन्ग साइड विद यू,
ताकि आप सीखो उनसे। देयर इज नो सच थिंग कि आप एकदम परफेक्ट हो गए हैं और आप सीख के आ रहे हैं कॉलेज से एंड यू आर द वन हु इज पेनिंग ऑल दी स्टोरीज, तो फिर मजा नहीं आएगा। यू विल नेवर बी लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी बिकॉज यू आर द वन हु इज द राइटर एंड यू आर द वन हु इज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो पिक्चर के पूरे सब कुछ आप ही हैं। तो डजंट मेक सेंस। सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ प्लेस जहाँ पे क्रॉस कल्चरल टीम वर्क सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मल्टीपल कोलैबोरेटिव वर्क प्लेसेस है, लोगों के पर्सपेक्टिव से सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसा बेशक हो सकता है कि आप जिस दिशा में सोच रहे हैं उससे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट कुछ आइडिया, कोई शॉर्टकट और कोई ट्रिक या कोई बहुत ही एफिशिएंट आइडिया कोई दूसरा टीम मेंबर बता दे। तो यू हैव टू बी ऑल्सो लुकिंग फॉर पर्सपेक्टिव्स इन अ कंपनी। नाउ व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग कि चलो ये सब कर लिया है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ इसकी पैसा कितना लग रहा है, ट्रेड ऑफ इसकी टाइम कितना लग रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी स्किल सीख रहे हैं, लेट्स से कोडिंग सीख रहे हैं, सो आर यू इन्वेस्टिंग लाइक मोर देन द टाइम नीडेड और आर यू इन्वेस्टिंग लेस, तो वो सब चीज़ें देयर शुड बी अ राइट बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि पैसा ही डाल रहे हो आप, आपका समय भी ज़्यादा है, तो समय मुझे लगता है इज द बिगेस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट यू कैन हैव इवन मोर देन द मनी। तो अगर पैसा अगर टाइम है तो यू कैन ब्रिंग मोर मनी, बट देन वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किसी एक स्किल को आप लर्न कर रहे हैं तो एक वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं, या आप 5 साल से लगे ही हुए हो उस स्किल पे और वो सीख ही नहीं पा रहे हो। तो समवेयर आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे अगर कुछ लोगों के लिए मैथ्स नहीं वर्क करता, मैथ्स नहीं सीख सकते, तो ओके जाने दो उसको, आपके लिए नहीं बना है वो। मे बी यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, मे बी यू कैन बी अ गुड मैनेजर, मे बी यू कैन बी अ गुड फोटोग्राफर, मे बी समथिंग एल्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो वो आपको थोड़ा सोचना रहेगा एंड एट द एंड ऑफ द डे प्लान अहेड ऑफ टाइम। आपको बहुत आगे, जैसा मैं कह रहा हूँ, ऑलवेज हैव अ बिगर बिगर विजन इन लाइफ, ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड। अगर आप शॉर्ट विजन्स के साथ चल रहे हैं तो आपको खुशी ज़रूर हो जाएगी, बट अगर सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचना है देन यू नीड टू प्लान वेरी मच अहेड ऑफ टाइम कि आज से 10 साल बाद क्या मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल पंप्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिक हब्स में बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मे बी यू कैन प्लान अ कंपनी फॉर दैट। आप सोच सकते हो कि कंपनी खोलते हैं ना, चलो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी, समथिंग लाइक दैट। एनीथिंग कैन कम टू योर माइंड, बट प्लान अहेड ऑफ टाइम। Now, the biggest question that come to your mind is कि भाई how do I become a billionaire, which is how do I really become successful in earning these skills, और सीखे कैसे ये skills इतनी सारी हैं समझ ही नहीं आ रहा है, and which are the right sources. So I think the right sources, the very first source which I feel is free of cost is YouTube channels. There are so many beautiful YouTube channels which are there on your screen. I will share the link for this presentation जो मैंने YouTube पे भी upload कर रखा है, so don't worry on clicking the screenshots or anything. Now the point is top dog engineer सबसे beautiful source मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि it is all on Excel sheets। तो Excel sheets आपको चाहिए and then what you have to do is कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए and they will treat you like एकदम बेसिक से ऑयल एंड गैस के बारे में बताएंगे, डेटा भी दे देंगे, they will give you the analysis, anything and everything is there, और वो सब चीज़ें एक्सेल में होंगी। Now why I always like Excel is because कुछ सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं भरना है and you can learn the right skill which is probably being done in a software। आपको बैकएंड स्टोरी तो पता चल गई ना, which I was saying कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में आपको बैकएंड स्टोरी पता चल गई थी, हाफ ऑफ द जर्नी इज ऑलरेडी ट्रैवल्ड। तो द रेस्ट ऑफ द जर्नी जो आपको देखनी है दैट इज अबाउट द सॉफ्टवेयर। Then you have Geostats Guy lectures, which is now Geostats Guy lecture is a great professor from UT Austin, University of Texas Austin। वो अपने YouTube वीडियोस देते हैं जहाँ पे he teaches Matplotlib, Pandas, data science, machine learning, everything for free of cost। कंप्यूटर मॉडलिंग ग्रुप, CMG जो मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जो कंपनीज में हमारे पढ़ाने आते हैं, ट्रेनिंग देने आते हैं, they are also the people who give you trainings on the YouTube channels also, where they put free videos on the YouTube channel। just go there, understand कि बात क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कोरे शाफर, कृष्ण आय, PGD32M reservoir, multiple sources, like I can talk, so बहुत सारे sources हैं, but these are the best sources जो मुझे लगते हैं which you should be following as a YouTube channel। Then are the LinkedIn pages। I would always recommend each one of you कि LinkedIn पे आपका प्रोफाइल बनाइए, चाहिए तो मेरा प्रोफाइल देख के कॉपी पेस्ट करके उसको बना लीजिए, बट ऑलवेज मेक समथिंग बिकॉज इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट प्रोफेशनली। लोग बोलते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, मैं तो क्या करता हूँ, लिंक्डइन पे जाता हूँ, वहाँ पे सर्च बार बना होता है, रेदर देन सर्चिंग फॉर पीपल। तो जनरली लोग क्या करते हैं, दे सर्च फॉर पीपल। इफ यू वांट टू सर्च फॉर इंटर्नशिप, आप सिर्फ इंटर्नशिप लिखिए एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग
पूरे वर्ल्ड में जिसने भी इंटर्नशिप के बारे में कोई भी पोस्ट डाला है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड रिसर्च करने का। गूगल पे तो रिसर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आउटडेटेड चीज़ें भी मिलेंगी। बट लिंक्डइन पे व्हेन यू गो एंड सर्च समथिंग लाइक इंटर्नशिप और ट्रेनिंग और फ्री कोर्स और पाइथन और मैटप्लॉटलिब, दुनिया में जो भी उस बारे में बात कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एंड मे बी यू नेवर नो कि देयर इज वन एम्प्लॉयर दैट इज हिडन इन दैट पेज। So I think that is something which you should be following. Petroleum Engineers Association, Stanford Earth, Machine Learning Plus, ये सब चैनल्स हैं जो पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ना वाई आई रेकमेंड कि पेजेस फॉलो किए जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कोड इन प्लेस या CS 106 से, जिसकी नॉलेज मुझे डायरेक्टली पेज से ही आई थी। मुझे कोई बोलने नहीं आया था कि देखो CS 106 से कर लो, कोडिंग सिखा रहे हैं। आई थिंक यू शुड हैव अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो जब आप लिंक्डइन पेजेस को लाइक कर लेते हो, तो जब वो पेजेस पे कोई भी पोस्ट करता है तो यू गेट एन आइडिया कि हाँ भाई ये चीज़ तो अपने काम की है एंड मे बी फ्यूचर में भी दे कीप ऑन पोस्टिंग मल्टीपल थिंग्स फॉर यू. So that is how you join the LinkedIn pages. You should also be following people and community. People and community, like you follow multiple people like Michael Purds, Alfonso Reyes, Johannes Nuara, Alejandro Pimera. तो ये सारे लोगों को you can follow. ये अपने डे टू डे लाइफ में वीडियोस, नॉलेज शेयरिंग सेशंस और लिंक्डइन पे पोस्ट और चीज़ों के बारे में बात करते हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे बाय दैट यू विल लर्न अ लॉट. कम्युनिटी लाइक कैगल, गिटहब, आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि रिज्यूमे में यू शुड हैव समथिंग लाइक कैगल और गिटहब या डेटा साइंस सेंट्रल या स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक ओवरफ्लो इज़ अ वंडरफुल वेबसाइट. अगर आप कभी भी कोडिंग में फंस रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो मे बी दुनिया में बहुत सारे लोगों को सेम सवाल आया होगा कि अच्छा इस कोड को कैसे लिखना है, या इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे चलती है, या फॉर लूप में आई का मतलब क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग वेरी वेल रिटन देयर. लोग अपने बारे में बताते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं. आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर प्रोजेक्ट. देन इज वेबसाइट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं. coursera.org पे एंड्रयू एनजी का ब्यूटीफुल कोर्स है ऑन मशीन लर्निंग. cmgla.ca, कोड इन प्लेस जो मैंने बता दिया है आपको. edx.org, मीडियम, फोर्ब्स, लैंडमार्क सोल्यूशन हैलिबर्टन का है. देन JPT इज अगेन जर्नल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी. sp.org जो मैं कह रहा था, how do you be a part of SPE, तो sp.org पे जाइए and you will find multiple places how you can be a part of it. Then you have to also, now इतना सब सीखने के बाद आपको अप्लाई भी करना है, क्योंकि कंपनीज आजकल ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे में लिख दिया और हो गया. तो यू हैव टू ऑल्सो बी कॉशियस कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें. तो जैसे मैंने अपनी स्किल जो मैंने शेल में सीखी थी उसको लॉरी डेक चैलेंज, जो फील्ड चैलेंज की बात कर रहा था, उसमें किया था. या आप क्विज में बहुत अच्छे हैं या टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं, तो SP पेट्रोबोल करके कॉम्पिटिशन होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है. शेल हैकेथन जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं. तो जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको कहीं न कहीं सपोर्ट करना ज़रूरी है ना. नहीं तो फिर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं या आप में वो क्षमता है आगे करने की, उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू टेक पार्ट इन दीज़ कॉम्पिटिशन्स. किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि सर्टिफ़िकेट्स करके और 10 सर्टिफ़िकेट को रिज़्यूमे में डाल देंगे, तो दैट विल नॉट वर्क. इनफैक्ट आप अगर ये लिख दोगे कि you were a participant of Lorry Day Challenge, or you participated in INSEAD Global Energy Day, or you presented in some conference, so that is something which is speaking for itself. Then आपको उसके सर्टिफिकेट को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये बहुत कॉमन मिसनोमर है बच्चों के माइंड में कि सर्टिफिकेट ज़्यादा लेके आएंगे तो ज़्यादा जॉब ऑफर्स आएंगे या ज़्यादा इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे. नाउ ओके, इतना सब करने के बाद भी इंटर्नशिप कहाँ से करनी है? So there are multiple places where you can do internships. Places such as Mitex Global in Canada. So what is Mitex Global in Canada? आपके कॉलेज में Mitex, I'm not sure somebody knows about it, but Mitex is a Canada opportunity. आपको अप्लाई करना है और आप में से maybe 1 or 2 students will be selected and they will directly go to Canada. All of this is being sponsored by the government of India. आपको just अप्लाई करना है, आपके प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने हैं, and then immediately you get to go to Canada and work there as a research fellow in some university. Now why I always prefer people doing this is because like I said, international exposure जितना हो सके और जितना मिल सके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो क्या चाहते हो. Then you can go for WISE-DART. WISE-DART is for Germany. Charpak is again for France. UTP Malaysia is a beautiful place जहाँ पे आप जा सकते हैं, which is close to India. तो यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, पेट्रोनास जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में. There is another college in Malaysia which is UTP.
आप यूटीपी के वेबसाइट पे जाइए, उनके प्रोफेसर्स को रीच कीजिए, उनको बोलिए कि सर हमें इंटर्नशिप करना है आपके अंडर, एंड प्रोबेबली सम ऑफ यू माइट आल्सो लैंड इनटू यूटीपी सिलेक्शन। ऑल यू हैव टू डू इज कि वहाँ का आपको बस ट्रैवल एक्सपेंस भरना पड़ेगा। मुझे जितना लगता है उसका एक एक डायरेक्शन में जाने का खर्चा ही 7 से 8 हज़ार रुपये, दैट्स इट। तो अगर 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, तो नथिंग लाइक दैट। IRS अहमदाबाद जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अगेन थ्रू द सेम प्रोसेस लाइक ONGC, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज सेमेस्टर एट सी। सेमेस्टर एट सी इज, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना है, बट 6 महीने के लिए आप एक बोट में इंटर्नशिप कर सकते हैं, एक शिप के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट अप्लाई करना है, यू गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग, यू गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, बट यू शुड हैव अ रीजन व्हाई यू वांट टू डू दैट। फिर SN बोस स्कॉलरशिप है। सर्ज स्कॉलर इज अगेन फ्रॉम IIT कानपुर। तो सर्च स्कॉलर्स, आई फॉरगॉट द फुल नेम, बट सर्च स्कॉलर्स इज अगेन IIT कानपुर के प्रोफेसर्स के अंडर। आपको अगर लग रहा है कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट गो टू सर्च स्कॉलर एंड देन से कि वी वांट टू डू एन इंटर्नशिप विद वन ऑफ द IIT प्रोफेसर्स, एंड दे माइट सिलेक्ट यू। फिर आप कानपुर में जाके प्रॉब्लली उनके अंडर वर्क कर सकते हैं, एंड दैट टू फॉर 2 months और 2.5 months। देन स्टूडेंट एनर्जी इज अगेन अनदर फॉरम जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव प्रेजेंटेशन, यू कैन ऑल्सो गो टू लंडन थ्रू दी स्टूडेंट एनर्जी। नाउ ऑल दीज दैट आई टॉक अबाउट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लिटरली 1 रुपया भी नहीं भरना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए देर इज सो मच फेलोशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज, बट आपको अप्लाई करना जरूरी है। इफ यू डोंट अप्लाई, यू विल नॉट लैंड इन टू अ गुड प्लेस। एप्लीकेशन देते समय भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड बी अप्लाइंग, आपके लैंग्वेज में कोई एरर नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बस ऐसे सोते सोते अप्लाई कर दिया और फिर आप इमेजिन कर रहे हो कि मैंने तो अप्लाई किया था पर आया नहीं। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर टेकन केयर ऑफ। कोशिश करो कि जब भी आप अप्लाई करें, यू टॉक टू मल्टीपल पीपल, मे बी यू कपल ऑफ यू कैन सेंड मी योर एप्लीकेशन, मे बी सर आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एंड देन आई माइट हेल्प यू कि इसमें ये चेंजेस कर दो, और मे बी आई मे मॉडिफाई सम ऑफ दी सेंटेंसेस फॉर यू। तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली डू इट। अगर आप सोच रहे हैं अकेले ही आप सब कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक आज तक जीवन में कोई अकेले कुछ हासिल कर पाया है। Then what about you? Chalo, last में we'll end this presentation by saying what are the last quick tips that I would like to give you. SP provides free membership for all students. So please go to sp.org and go and enroll for a membership immediately. Use LinkedIn wisely. तो बहुत सारे लोग मेरे पास LinkedIn request भेजते हैं, and what they really forget is because मैं नहीं जानता उनको who they are, what they are doing. So for example, I want to send a LinkedIn request to one person who is known as Jim Crompton. He is a great professor at International University. मुझे उनको भेजना है कि वो मेरा request accept कर लें. Now what I can do is I can immediately either click on the send button और immediately वो request मेरी चली जाएगी उन तक. Or the second thing I can do is I can personalize my invite. तो इसमें लेफ्ट साइड में जो एक चीज देख रहे हैं, add a note, which is also known as personalized invite. तो एक छोटा सा नोट आप लिख दीजिए दैट यू आर सो फ्रॉम सो एंड सो प्लेस एंड यू वांट टू कनेक्ट फॉर सो एंड सो रीजन, बस उतना ही लिखना है, बिकॉज दैट्स हाउ आई विल नो। आज अगर मुझसे कोई कनेक्ट करना चाह रहा है और अगर वो 2 लाइनें ये चीज मुझसे लिख देता है कि आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम रिसाइडिंग हियर एंड आई एम वांटिंग टू कनेक्ट विद यू फॉर दिस रीजन, तो आप मानेंगे नहीं कि आपका जो कन्वर्जन रेट है, जो लोग आपसे बात करने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी रिक्वेस्ट, वुड बी मच हायर देन दी दी the one where you just send पे क्लिक करके आप जो रिक्वेस्ट भेज देते हैं। सो मे बी यू शुड यूज लिंक्डइन वाइजली एंड स्मार्टली, एंड लाइक आई सेड, वो सर्च बटन को इतना बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आज भी अगर किसी का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है, गो एंड सर्च फॉर इंटर्नशिप इमीडिएटली, आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, एंड यू नेवर नो, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है। तो दिस इज वन वे जहाँ पे रिसेंट चीजें आपके सामने आ जा रही है। Then replicate work and projects done by different users. तो a lot of people say कि सर replicate करके तो वो सेम नहीं हो जाएगा, फिर तो यूनिक कुछ हमने बनाया ही नहीं है। So the point is replication helps you to understand the workflow कि पीछे बैकएंड में क्या हुआ है, प्रोजेक्ट्स में कहाँ फंस सकते थे, प्रोजेक्ट्स की क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उनमें क्या क्या हमने चेंजेस लाने चाहिए थे। तो मे बी उस वर्क को रेप्लिकेट करके एकदम 50-100% तो नहीं सीखोगे, बट अ पार्ट ऑफ यू विल अंडरस्टैंड कि चलो मेरे को इस चीज में दिलचस्पी आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और
when you put a replicated work into your resume तो people will like it. ऐसा नहीं है कि आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कंपनी से कि आपको तो एकदम यूनिक ही कुछ करना है, या अगर कार्बन कैप्चर के ऊपर बातें चल रही हैं या हाइड्रोजन पे बात चल रही है तो आपके रिज्यूमे में उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये जो कॉमन मिसनोमर है या गलतफहमी है, ये थोड़ा सा हटा दो, और रेप्लिकेशन करना बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। सर्टिफिकेट्स लाना डेफिनेटली नॉट गोना हेल्प। अगेन आपको अगर दिक्कत हो रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऑयल एंड गैस करना है नहीं करना है, और मे बी आज अगर मेरी प्रेजेंटेशन में शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, बट इफ अगर स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं देन गो एंड रीड माय आर्टिकल। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल which is written by me and my team members, and we have wrote everything and anything about what is going globally। लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में लिखा गया है। Then, like I said, learn and implement. Certificates will only and only help you when you are able to apply these skills. तो अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो स्किल्स को और जस्ट वीडियो सुन सुन के बस आपने नोट्स भी बना ली और फिर सर्टिफिकेट आप किसी को दिखा दे रहे हो, इट विल मेक नो सेंस एट ऑल। मेरे आज तक के जीवन में मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि अच्छा आपने कितने सर्टिफिकेट्स आज तक अर्न किए हैं, बिकॉज आई हैव नेवर वेंट थ्रू दैट साइकिल जहाँ पे मैं सिर्फ सर्टिफिकेट्स अर्न कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ दिखाने के लिए ही नहीं है। तो यू शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट एंड लर्न, एंड डू नॉट एंड अप इन अ जॉब टू कन्विंस अदर्स। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो 120 बच्चे हैं कॉलेज में, कंपनी तो आती है 2-5 बच्चों को ले जाती है, तो हमको हमारा तो जॉब ही नहीं लग रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न का बात यह है कि वाई डू यू वांट टू एंड अप डूइंग अ जॉब दैट इज अ कोर जॉब, कि पेट्रोलियम की कंपनी में ही क्यों जाना है। अगर आप आज के दिन में, आज से 10 साल पहले आपके यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग किसी प्राइमरी डिसिप्लिन में थे या मैकेनिकल में थे या सिविल में थे या पेट्रोलियम में थे, वो आज के दिन में उस डायरेक्शन में है ही नहीं। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स टू गिव यू कि यू शुड नॉट क्रेव फॉर अ कोर जॉब, इंस्टेड यू शुड क्रेव फॉर समथिंग जो आपके लिए बना है। अगर आपको लग रहा है फोटोग्राफी इज समथिंग, और लेट्स से UI UX डिजाइनिंग इज समथिंग, और लेट्स से कोडिंग इज समथिंग, और स्टॉक मार्केटिंग इज समथिंग, और फिनेंस का कुछ है या लॉ कुछ है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अपस्किल योर सेल्फ। आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अपने आप को डिफाइन मत करिए। एंड ऑल्सो डू नॉट टेक अ जॉब कि माँ बाप को अच्छा लगेगा कि हाँ बेटे ने जॉब ले लिया है, हमने तो उसके लिए ही पढ़ाया था बच्चे को। डू नॉट डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि वो जॉब आपके लिए नहीं बनी है तो डू नॉट, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो जॉब ले लेते हैं, पर जैसे ही आप वो जर्नी स्टार्ट करते हैं आपकी जॉब की, आपकी डेफिनेशन वहीं से चालू हो जाती है। वेयर जब तक आप जॉब नहीं करते हैं तब तक जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी कॉलेज की जो डेफिनेशन है और जो आपकी स्किल्स जो आपने लर्न की हैं वो डेफिनेशन आपको डिफाइन करती है। बट अगर आप किसी गलत जॉब में चले गए तो थ्रू आउट फिर वो आपको वो भागते रहेगा आपके जीवन में आपके पीछे। सो वन शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट एज वेल। लास्ट इज कम्युनिकेशन इज एन एडेड एडवांटेज। जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन मेरे लिए इज कि 20 पॉइंट रखने हैं और 18 पॉइंट समझ में आए। मेरे लिए कम्युनिकेशन ये नहीं है कि 100 पॉइंट रख देते हैं और फिर 100 में से 100 के पॉइंट 100 समझ आ जाएंगे। अगर 100 में से 50 ही समझ आए तो फिर परसेंटेज इज 50, राइट। वेयर इज अगर 20 में से 18 आ रहे हैं तो माई परसेंटेज इज वेरी गुड विच इज 90%। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि पॉइंट्स कम रखो और उतने ही रखो जितना आपको लग रहा है कि सामने वाला समझ सके, और वो ल्यूसिड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। आप सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डाल के उसको घुमा फिरा के आप बता दोगे तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि इंग्लिश में ही बोलना इज अ कम्युनिकेशन, तो दैट इज अगेन अ मिथ। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में बोल के आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मे बी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इंग्लिश अगेन क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है, लोग सोचते हैं कि ये फलाना बंदा या ये कोई आदमी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इंग्लिश बोलने से। दैट इज वाई यू हैव टू लर्न दैट। आपको खुद को भी अच्छा लगने लगेगा। देर इज नो कंपल्जन कि आपको इंग्लिश सीखना ही है, बट देर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड ऑल्सो टॉक टू पीपल टू चेक प्रोग्रेस। अगर आप आपके जीवन में किसी एक सर्टन स्किल को सीख रहे हैं, सो लेट्स से इट इज SQL विच इज सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज, जो MS Excel को आजकल रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आपको लग रहा है कि SQL में आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा, और इट कुड बी एनी ऑफ दैट कीवर्ड जो नहीं समझ आ रहा है, और आपको लग रहा है कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, थोड़ा सा संदेह है इस बात के बारे में, तो गो एंड टॉक टू पीपल। आर यू गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? हो सकता है हम भी हमारे प्रोजेक्ट्स में जब ऑफिस में काम करते हैं, हमने जिस विजन से चालू किया होता है वो प्रोजेक्ट, बीच में आके पता चलता है ये तो कुछ और ही एंगल पे आ गया है, ये कुछ और ही मोड़ ले रहा है।
then we have to go back and maybe back foot पे जाके थोड़ा सा उसको revise करके and then we have to play with the project. So that is also valid in your day to day life. That's what I would say. Towards the end, how has SP helped me? These are the things which SP has given me. मैं I was just a student like you. 2017 में graduate किया है. I was one of the judge for 2021 regional student paper contest. Now this regional is South Asia region पे. It's not India region but an international level. So like I said, I am more of a champion of doing things जो international level पे ज़्यादा हो, क्योंकि that's what the society is buying. तो आपको सोसाइटी को बेचना भी है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी डूइंग एसपीई मेंटरिंग भी करता हूँ मैं, जहाँ पे students like you, there is one student, there are a couple of students who connected with me. One of that is already in Shell, one of them is working in Exxon Mobil. तो जितना कोशिश होता है, आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ओनली टेक 2 e-mentees at the same time. अगर आपको लग रहा है कि आई एम अ राइट फिट एज अ मेंटर, तो go to sp.org and search my name and then shoot me a request, and I will definitely be more than happy to help you. I am also an advisor in the virtual career pathways fair जो SP का होता है. I am also an ambassador lecturer. अभी recently I gave a lecture at SP PDU University गांधीनगर में है. I am also a part of the ATC Committee 2022. Now, when I say ATC, stands for Annual Technical Conference and Exhibition, which is again an SPE का organization, Society of Petroleum Engineers का annual conference होता है. This takes place every year in USA. तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इंडिया में बैठे बैठे बाहर की कॉन्फ्रेंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, एंड आई थिंक एसपी ने मुझे एक वो प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आई कैन इवन ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस बाय सिटिंग इन इंडिया एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, and I think that's how I ended up being a part of ATCE committee. Also, I'm a content creator. Like I said, I do a couple of interviews also. Recently, Baghjan में blowout हुआ था 2022 में, 2020 में sorry, and I did interview one of the key personnel of Baghjan. Probably वो interview अभी online आया नहीं है, but I take a couple of interviews as well for different professionals. जहाँ पे I talk to the professionals कि how should young people like you and me can learn from them, और फ्यूचर में जाके हमें कौन सी स्किल सीखनी है. दैट इज समथिंग विच आई आस्क देम. Find out more about SP and the industry, log into www.this, PetroWiki, Energy for Me, or you can even directly email SP. You can take a screenshot for this if you need. And I will also share the details with Ronak as well. Then you can provide your feedback. अगर आपको लग रहा है कि ये feedback ये तो मेरा पुराना SP का था, but it's not a feedback. That's all what I have for you guys. That anything that you want to learn and ask, I think that's what I have for you today. Yeah, that's it. Thank you so much. You can ask. The floor is open for questions, and thank you so much for taking time and listening to me patiently. Yeah, wonderful, wonderful, Mani. It was a great presentation, and definitely now I would like to request if any of the student has any kind of questions, so definitely they can ask so that they can have specific answers to those questions. Yeah. गुड इवनिंग सर. Yes. Good evening, Sumit. बताओ. सर ये बोल रहे हैं कि 2 तारीख को हमारा पेपर वगैरह सर जितने भी कॉलेज का है सब ऑफ हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, और हम लोग 4th ईयर के स्टूडेंट है सर, और हमें फाइनल सर ईयर खत्म हो गया है आपका? सर 10 दिन में खत्म हो जाएंगे पेपर वगैरह ओके. देकर सब कुछ. ओके. और सर अभी तक ना पेट्रोलियम फील्ड में कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं मिला है उस टाइप का जिस टाइप से हम लोग सर चाह रहे थे कि हाँ कुछ अच्छी जॉब से मिल जाए. हम्म. तो सर हाँ, और तो हम लोग को सर क्या करना है कैसे करना है सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब तो एकदम ब्लैंक है कि आगे अब 10 दिन बाद क्या करना है, तो कुछ ओके. समझ में तो नहीं आ रहा सबसे वन डायरेक्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क यू सुमित इज कि आपको पेट्रोलियम में ही जाना है और यू आर ओके गोइंग विद एनी अदर डिसिप्लिन? पहले तो सर सर अगर कोई और फील्ड में अगर ग्रोथ अच्छी है तो सर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ तो हर लेकिन फील्ड सर में है. ग्रोथ तो हाँ हर फील्ड में है. आई कैन नहीं बेट ऑन दैट. अगर हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कोडिंग में ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट पेट्रोलियम से सबसे ज्यादा ग्रोथ तो डेटा साइंस में है, और डेटा साइंस से ज्यादा ग्रोथ कंप्यूटर साइंस में है. तो ग्रोथ हाँ तो आजकल इतना ज्यादा ओपन हो गया है ये चीजें कि आपको डिजाइनिंग करनी है तो वहां भी ग्रोथ है, बट देन यू हैव टू लर्न द स्किल. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ग्रोथ आपके ऊपर है सुमित. मतलब आपको अगर ऐसा है पेट्रोलियम ही करनी है, और पेट्रोलियम में भी लेट्स से ओएनजीसी लोगों को लगता है इट्स अ ड्रीम जॉब, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, ड्रीम जॉब, 18-20 लाख रुपए मिलते हैं एज अ न्यू ग्रेजुएट ट्रेनी. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ओएनजीसी. फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट. सिंपल देर. अगर आपको ऐसा लग रहा है ओएनजीसी आपके कैंपस आ जाएगी, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन,
तो आपको गेट की तैयारी करनी होगी एंड देन क्वालिफाई योर गेट एग्जाम. नाउ देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ गिविंग गेट. वन इज कि अगर आपको लग रहा है कि गेट एग्जाम देके ओएनजीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर भूल चुके नहीं होता है फॉर सम रीजन, Yes. there are beautiful opportunities like IIT Madras, IIT Powai. You go and be a part of one of the master student. और मैं तो ये मानता हूँ कि जो बीटेक आज के दिन में, आज आप जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शंस खोलेंगे ऑनलाइन, यू विल सी ऑलवेज एमटेक होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए. तो आजकल ये ऐसा रिवाज हो गया है कि एमटेक या बीटेक इज समथिंग लाइक 12वीं कक्षा पढ़े हैं. पहले ऐसा होता था कि 12वीं कक्षा पढ़ ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. बट आई थिंक बीटेक के बियॉन्ड जाना इज द ट्रेंड दीज डेज. तो अगर आपकी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड आपका टाइम ये परमिट करता है दैट यू कैन परस्यू एन हायर एजुकेशन, बीट मास्टर्स, और इंडिया से ही अगर आपको लग रहा है, तो यू शुड वेरी मच गो देयर. और अगर आपको ऐसा लग रहा है देर इज अ डिफरेंट स्किल विच आई ऑलवेज से कि कोडिंग सीखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो कोडिंग की स्किल्स आप सीखें जो मैंने सोर्सेज शेयर किए हैं. यू हैव टू जस्ट डिलीजेंटली वॉच दोज वीडियोज़ और धीरे धीरे आप समझोगे, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. जैसे मैंने कम्युनिटी चैनल्स भी बताए हैं आपको, तो यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. अब थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है कि कोई धक्का मार मार के बताएगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो आई थिंक वो सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक थिंग्स माइट नॉट वर्क. तो बोथ फॉर गेट एंड बोथ फॉर द अदर फोरम्स लाइक डेटा साइंस, और यू कैन वेरी वेल जॉइन अ कंसल्टेंसी फर्म. बट देन द पॉइंट इज क्या वो आपको समझना है कि वो स्किल कौन सी है. जैसा मैंने बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन में पावर बीआई की बात हो रही है, टैबलू की बात हो रही है, तो उन सब चीज़ों को कैसे सीखा जा सकता है इन दी चीपेस्ट वे पॉसिबल. अगर 500,000 रुपये भी भरने पड़ रहे हैं किसी यूडेमी के कोर्स के लिए या बूट कैंप के लिए, आई वुड से, तो यू शुड गो अहेड विद इट. बट यू शुड डू अ वेरी हैंड रिसर्च. अगर आप कहीं पे भी पैसा या समय डाल रहे हैं, बट यू शुड स्पीक टू मल्टीपल पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट. ऐसे ही यू जस्ट डोंट लैंड इनटू एन ओशन एंड से कि चलो स्विमिंग करते हैं. यू शुड नो दैट द ओशन इज वर्थ स्विमिंग ऑन नॉट. या Thank you so much, sir. Thanks. Hello, sir. Good evening, sir. हाय विपिन, हाउ आर यू? I am fine, sir. सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर हम लोगों ने सर पांचों लोगों ने सर इंटर्नशिप के लिए सर ओएनजीसी में अप्लाई किया था सर फॉर्म. ओके. तो सर अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया सर. पिछली बार तो आ गया था रिस्पांस, ऑनलाइन हुआ था कोरोना के चक्कर में. तो सर इस बार अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया. तो सर ये समझ नहीं आ रहा है कि सर 7 तारीख के बाद हम लोग एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो सर 2 महीने की एक महीने की छुट्टी मिल रही है. सर उसमें हम लोग ट्रेनिंग कहाँ पे करें सर इंटर्नशिप की? तो डू यू नो किस फोरम से अप्लाई किया गया है और कहाँ किया सर गया है? बीटेक पेट्रोलियम से किया था सर मैंने. एक तो क्या नाम है सर, बोकारो में किया था, एक सर गुजरात में किया था, एक सर 2 जगह और के सर याद नहीं आ रहा नाम सर. नो इश्यूज. नाउ द पॉइंट इज आपने फॉलो अप लिया कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई Yes, करने sir. के बाद फॉलो अप एक दूसरी चीज होती है कि आपको जैसे जैसे समय आगे आ रहा है, जैसे यू सेड कि अभी इंटर्नशिप्स चालू हो गई हैं, बट यू हैव टू टेक अ फॉलो अप कि जिनको भी आपने वो फॉर्म भेजे थे, मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन और मे बी अ पर्सन लाइक मी, तो उनसे फॉलो अप लीजिए और पूछिए कि सर व्हाट इज दी स्टेटस और मैम व्हाट इज दी स्टेटस, और देन probably they can guide you. There are multiple reasons कि वो नाम क्यों नहीं रिलीज हुए. Is it कि just आप लोगों के नहीं हुए हैं, या you see there are other people who are posting कि उनके सिलेक्शन कॉल आ गए हैं पर आपका नहीं आया है. तो I think follow up is something which will only help you. I don't know कि who is actually catering to आपने किनको फॉर्म भेजे हैं. तो फॉलो अप जब तक आप नहीं लोगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा कि क्या है. तो once you get a follow up then you get a clarity कि मिल भी रहा है और you are just dwelling on that कि बस सपनों में लेके बैठे हैं बट आएगा कभी नहीं. तो Yes, sir. रियलिटी एक बार पूछ लो, रियलिटी चेक कर लो, उसके बाद देन यू मेक अ डिसीजन. नाउ अगर लेट्स से अज्यूमिंग कि वो नहीं आता है, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर Yes, sir. नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो करना क्या है? देन अगेन लाइक आई सेड, यू हैव टू डायरेक्ट योरसेल्फ कि करना जीवन में इवेंचुअली ऑयल एंड गैस में जाना है, या इवेंचुअली ओएनजीसी का ही पार्ट बनना है, या इवेंचुअली किसी बड़ी कंपनी का पार्ट बनना है. तो उसके लिए स्किल्स को उसको पॉलिश करना चालू कर दो धीरे धीरे, बिट बाय बिट. आई थिंक स्मॉल लेवल पे भी यू शुड स्टार्ट, एंड इवेंचुअली अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई डोंट रियली थिंक विद दी सोर्सेज दैट आई हैव शेयर्ड, मतलब that's why I have shared those sources with you. I'll also probably put the link of that video or maybe share it with Ronak as well.
तो आप उनको देखिए एंड देन आई थिंक दो सोर्सेज आर मोर देन इनफ टू लर्न दैट स्किल, अगर आप बहुत ही डिलीजेंटली उसको देखते हैं तो। नहीं तो फिर देन कोई फ्री में तो नौकरी डेफिनेटली नहीं देने वाला है, देयर इज अ लॉट ऑफ Yes, sir. शॉर्टेज दीस डेज। और आई थिंक अपग्रेड आप करोगे प्लस स्पेसिफिकली इन डेटा साइंस, तो यू कैन वेरी वेल गेट अ डिसेंट जॉब, दैट्स व्हाट आई नो। एसक्यूएल सीख लो, पावर बीआई सीख लो एंड पाइथन सीख लो, बेसिक चीजें सीख लो। And I think you guys are from reputed universities, so should not be a problem. अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम तो आईआईटीएन नहीं है या हम बहुत हाई फाई कॉलेजेस से नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आज के दिन में स्किल्स ही बिक रही हैं, कॉलेजेस नहीं बिक रहे हैं। इनफैक्ट देर आर कॉलेजेस जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं जा रही हैं, और देर आर स्मॉल कॉलेजेस जहाँ पे कंपनीज जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल सेट है। तो स्किल्स भगवान है, कंपनी या कॉलेज भगवान नहीं है। So that's what you should be remembering in your journey. Okay, sir. Thank you, sir. So any other question from the students? Fine. So if there are no questions, and if even if there are any question in between, you may pause me in between and ask any question to the expert. And now coming to concluding, so one part which make me stick to the presentation personally, so that is like the amount of not I can say the amount of information, but the amount of right information which was provided through the presentation. And if definitely I can bet on, like, if you people will follow all the resources, or not even all, I can say if you will if you people will follow even 50% or 40% of the resources at the first hand, then definitely you may end up getting started with your career. And then definitely, as long as you are following those resources, as long as you are progressing through your career, definitely you people will make a great journey in petroleum engineering. And one more thing which I think, as Mani ji has repeated multiple times, that if you people want to be the part of SPE, or if you people want to be the part of some internship programs, then definitely you may contact him, approach him personally, and then definitely ask him the suggestions, or he will share the forms to participate in those internships, right? So definitely you could do that, and you could connect with Maniji. I will share the contact, and definitely I will as I will get the link of the YouTube video, I will share that presentation as well with you, so that you may have all the resources at your desk, right? So with this, let me let me once again appreciate the efforts of Mr. Mani Vansal that you made while guiding the students for making a rewarding and great career in petroleum engineering. And one thing which I can definitely say from my heart, that presentation was absolutely wonderful, absolutely wonderful. It was amazing, great, and that is the only reason that I could stick to this presentation, because as I told to one of my team member in the afternoon itself, that because of one urgent work, I may have to leave this session in between, and you might have to deal with the session. But then I thought that this is going so well that I have to stick till the end of this presentation. So that is one thing I would like to No, appreciate. no, So I really appreciate that, Ronak, and it has always been a privilege for me to share my views with the audience. And I know there's a lot of wrong information that goes on the internet in the minds of students, and what I try to convey and put through my presentation is that the students get the right information and the transparent information. So there is nothing hidden. So whatever I have done, how I have done it, so people may share that they have got a job offer or they have got some interview, but who knows what happens behind the doors. So that is something which I believe which should come out in the transparent manner, or that's how the students would learn. Because well, a lot of people feel that how can we as students be a part of something as big as SPE, or as big as Shell, or be as big as ONGC, or as big as IIT. But I think it is all the consistent efforts that you put in. So it has been like 5 years for me in the organization. People who are like me are actually enjoying weekends or maybe wandering here and there. But for me, it is very much important that I keep on upskilling myself in whatever way. I know that coding might not be probably needed in my job because I already have the software.
or I some XYZ still might not be needed. So you should always keep that learning appetite on in your journey wherever you are. So irrespective of whether you are in oil and gas or not, always in your career, this should be the suggestion and advice that I give to everyone out there, that please keep that switch on. And you may find demotivating moments where you are not getting, there are times with me as well, and that is pretty much the part and parcel of life, that you apply for something and then you do not get it. But then I think with hard work, with the right direction effort you put in, things will fall in your place. That's what I can bet on. I have literally seen people like not earning even a penny after that college, एक रुपया भी नहीं मिल रहा है, but then now they are literally shining and earning like 70 lakhs, 80 lakhs. Somebody is like maybe selling a company for 40 crores. So आपको पता भी नहीं चलेगा that these people are like doing so much, and the only and only reason is कि उन्होंने they have believed in themselves कि they are meant for something big, and I believe all of you are definitely meant for something big. So please keep that urge on and stay motivated. And if you guys need any help from my side, I'm more than happy to assist you, facilitate you in whatever way I can.